ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آسام کی ایک مسجد کے اس امام صاحب کو لاکھوں سلام، ہزاروں سیلوٹ۔ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ بے مثال ہے اور پورے دیش کو فخر ہونا چاہیے ان پر۔ دیش کے لوگوں کو انہیں سمانت کرنا چاہیے، اعزاز سے نوازنا چاہیے۔ خاص طور پر آسام کی چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کو سمانت کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے اور 7 لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچانے کا کام کیا۔ اور یہ تمام 7 لوگ جو ڈوب کر مرنے والے تھے اور ان کی کوششوں سے 7 لوگوں کی زندگی بچ سکی، وہ 7 لوگ ہندو ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب لگاتار مسجد اور مدرسہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے، یو پی اور دیش کے کئی علاقوں میں تمام مدرسہ میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کی ایک سرٹیفکیٹ کی جانچ کی جا رہی ہے، ان کا آدھار کارڈ مانگا جا رہا ہے، ATS نگرانی کر رہی ہے۔ خود آسام کی حکومت مدرسوں کو دہشت گردی کا ٹھکانہ بتا رہی ہے۔ لگاتار مدرسوں کے خلاف وہاں ایکشن لیا جا رہا ہے، کارروائی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں لگاتار کئی قانون مدرسوں کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ اسی آسام کی ایک مسجد کے امام صاحب نے 7 ہندوؤں کو بچانے کا کام کیا۔ پورا واقعہ کیا ہے اسے سمجھیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ملا ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آسام میں کریم گنج ضلع ہے اور کریم گنج میں ایک علاقہ ہے نیلام بازار۔ نیلام بازار کی جو مسجد ہے اس مسجد کے امام ہیں مولانا عبدالباسط، اور رات کے اندھیرے میں اپنے روم میں سو رہے تھے مسجد کے امام مولانا عبدالباسط صاحب۔ اچانک ان کو لگتا ہے کہ باہر کچھ گرا ہے۔ جیسے یہ باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی مسجد کے سامنے جو بڑا تالاب ہے اس تالاب میں کوئی گاڑی گر گئی ہے اور گاڑی کی لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہے۔ مسجد کے امام صاحب مولانا عبدالباسط صاحب فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن کام کرتا ہے، ان کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اکیلے اس گاڑی کو نہیں نکال سکتے، اس کو بچا نہیں سکتے۔ چنانچہ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کا مائک جو اذان دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس مسجد کے مائک سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمام لوگوں فوراً مسجد کے پاس آ جاؤ، ایک کار تالاب میں گر گئی ہے اور اس گاڑی کو ابھی نکالنا ہے۔ جیسے مسجد کے مائک سے، مسجد کے میناروں سے یہ آواز نیلام بازار کے علاقہ کے لوگوں کو پہنچتی ہے، تمام لوگ رات کے اندھیرے میں مسجد کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، لائٹ لے کر، روشنی لے کر، ٹارچ لے کر۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گاڑی تالاب میں گر گئی ہے، تالاب کافی گہرا ہے اور گاڑی کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ اس گاڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور فائنلی گاڑی تو نہیں نکل پاتی، لیکن اس گاڑی میں جتنے 7 لوگ سوار تھے ان تمام 7 لوگوں کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ تمام 7 افراد زندہ بچ جاتے ہیں۔ جب ان کا نام یہ لوگ پوچھتے ہیں تو سب ہندو ہوتے ہیں اور وہ تمام یعنی وہ 7 ہندو ایک جگہ جا رہے تھے، اچانک ان کی گاڑی تالاب میں گر جاتی ہے اور بالکل وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اور جیسے ان تمام لوگوں کو نکالا گیا کچھ ہی منٹ بعد گاڑی پوری کی پوری ڈوب گئی۔ دن کے اجالے میں بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ اپنی انکم کو کیسے بڑھایا جائے، اس لیے آج میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں ایک شاندار ایپ سے جس کو مارکیٹ ولف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک SEBI رجسٹرڈ ایپ ہے جو انڈیا میں کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے یہاں پن ڈال کر لاگ ان کر لیا، بس فالو ٹرینڈ پر کلک کیا اور یہ آپ کو پروفیٹیبل ٹرینڈز دکھاتا ہے جو بازار میں چل رہے ہیں اور آپ ایک ہی کلک میں فالو کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں بہت چھوٹی انویسٹمنٹ اماؤنٹ سے بھی ٹریڈنگ شروع کر سکتے ہیں، جہاں دوسرے ایپس پر آپ کو 3 گنا زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے۔ اس میں انبلٹ اسٹاپ لوز فیچر بھی ہے جو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ جیسے ہی ٹریڈ ایک لوز لیول تک پہنچتا ہے یہ خود اسٹاپ لگا دیتا ہے تاکہ آپ کا زیادہ نقصان نہ ہو، اور ان کا بروکریج بھی انڈسٹری میں ون آف دی لویسٹ بروکریج ہے۔ دیکھیے پروفٹ ٹرینڈ کے حساب سے موو کر رہا تھا، میں نے اسٹاپ ٹریڈ کلک کیا اور بس 1306 روپے کا پروفٹ بک ہو گیا اتنے کم سمے میں۔ اس پوری فیسلٹی کو آپ صرف 99 روپے کا لائف ٹائم فیس میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سب کموڈیٹیز بھی یعنی کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل، نیچرل گیس بھی اتنی ہی آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، صبح کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ ولف ایپ آپ کو فری ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔
यह देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240 रुपया, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये और अब अक्टूबर में 57,580 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। उस तालाब की जो तस्वीर सामने आई है, उस गाड़ी की जो तस्वीर सामने आई है, आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है एक तरह से पूरी डूबी हुई नज़र आ रही है। इसके बावजूद इस गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और किस तरह उस इलाका के लोगों ने अपनी जान को ख़तरे में डाला, ज़िंदगी को ख़तरे में डाला और एक एक करके उन तमाम लोगों को उस गाड़ी से निकाल लिया। इन तमाम 7 लोगों ने जब देखा कि मस्जिद के माइक से ऐलान हुआ हमें निकालने के लिए, मुसलमानों ने आकर हमारी ज़िंदगी बचाई, इन तमाम लोगों ने मस्जिद के इमाम का, मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया, उनको सैल्यूट किया और कहा कि आप हमारे भगवान हैं, आप ना होते तो हमारी ज़िंदगी नहीं बच पाती। जैसे ये पता चला, उस इलाके के जितने लोग हैं, सरकर्दा लीडर्स हैं, उस तमाम लोग मौलाना अब्दुल बासित के घर पहुंच रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। अभी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बासित से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा का जो जिम्मेदार है वो भी अभी मेरे घर पर आया, उसने भी मुझे सम्मानित किया। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हेमंता बसवा शर्मा को खुद इन्हें सम्मानित करना चाहिए, एजाज़ से नवाजना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मौलाना अब्दुल बासित, मुअल्लिम मीराबाड़ी जामिउल फुरकानिया टाइटल मदरसा, इमाम बहादुरपुर बोबाई जामे मस्जिद। 1 दिसंबर में ये घटना हुआ। सुबह रात 4 बजने में, जब मैं 4 बजने में अजान के लिए उठा तो उस वक़्त मैंने आवाज़ सुना कि ये मस्जिद के करीब एक तालाब में गाड़ी गिर गया और गाड़ी के अंदर लोगों का आवाज़ सुना। तो मैंने जब देखा कि मैं अकेला उन सब को महफूज गाड़ी से नहीं निकाल सकता हूँ, तो मैंने मस्जिद के माइक में ऐलान किया है। ऐलान करने के बाद ये मोहल्ला वाले लोग आकर के गाड़ी में जितना लोग था सबको सही सलामत निकाला, सबका जान बच गया है। और हेमंता बिस्वा शर्मा या इस तरह के जितने लोग जो मस्जिद के इमामों को दहशतगर्द बताते हैं, जो मस्जिद के इमामों को, उलमा को मशकूक नज़रों से देखते हैं, उनके लिए ये जो कारनामा है, इनका आइडियल है, एक मिसाल है और उन्हें कान खोल कर देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि मस्जिद के इमाम या मदरसे के टीचर्स इंसानियत के दुश्मन नहीं, इंसानियत के दोस्त होते हैं। वो मुसीबत में फंसे लोगों की जान उनका नाम पूछे बगैर बचाते हैं। एक तरफ देश में ये ट्रेंड चल रहा है कि नाम पूछा जाता है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और जैसे बजरंग दल, वीएचपी इस तरह के लोगों को, या जो अपने आप को सनातन धर्म के पैरोकार कहते हैं, उनको जैसे पता चलता है कि सामने वाला अब्दुल रहमान है, सामने वाला अमजद हुसैन है, तो फिर ये उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं, उसको जय श्री राम का नारा लगवाने पर मजबूर करते हैं, उसकी दाढ़ी काटते हैं, उसकी गाड़ी को छीन लेते हैं, उसके साथ हर तरह का बुरा रवैया ये लोग अपनाते हैं। दूसरी तरफ ये मस्जिद के इमाम और मदरसे के उलमा किराम की मिसाल है। एक गाड़ी गिर जाती है और उनसे ये उनका नाम नहीं पूछते, उनका धर्म नहीं पूछते, उनका लिबास नहीं देखते, उनकी शनाख्त नहीं देखते, उनका रिलीजन नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ये है इंसानियत और ये उलमा किराम की, मस्जिद और मदरसा वालों की पहचान है और अब बदलना चाहिए इन सब को अपना नज़रिया। एक और वीडियो 2 दिन पहले की है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। मिल्लत टाइम्स पर उस बारे में रिपोर्ट भी आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शुभम नाम का एक कार ड्राइवर अपनी कार को तालाब में गिरा देता है। दरअसल वो कार चला रहा था, बच्चों को लेकर जा रहा था, लेकिन किसी वजह से उसकी कार तालाब में गिर जाती है, वो कार डूबने लगती है और तब
फैसल नाम का एक मुस्लिम लड़का सामने आता है, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है और वो उस कार को डूबने से बचाता है। ख़ासतौर पर उस कार में मौजूद शुभम को वो बचा लेता है। तो ये फैसल रहमान का किरदार है। इसी तरह एक और वाक़या पिछले दिनों जम्मू का सामने आया, जहां एक मुसलमान जर्नलिस्ट और पत्रकार को हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग की वजह से, सच्चाई दिखाने की वजह से हुकूमत ने सज़ा दिया और प्रशासन ने जाकर उस मुस्लिम पत्रकार नौजवान के घर को बुलडोज कर दिया। जैसे ही मुस्लिम नौजवान पत्रकार अरफाज के घर को बुलडोज करने की खबर उनके पड़ोसियों को मिलती है, उनका एक पड़ोसी है कुलदीप शर्मा, वो सामने आता है और अपनी प्रॉपर्टी अरफाज के हवाले करता है, उसको गिफ्ट करता है और कहता है कि मेरा पड़ोसी मुसलमान नौजवान ये सच्ची खबरें दिखा रहा था, हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहा था, तो हुकूमत ने, प्रशासन ने, बीजेपी ने इसके घर को बुलडोज कर दिया है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट कर रहा हूँ घर बनाने के लिए, और मैं घर बनाऊँगा अरफाज का। जब तक अरफाज का घर नहीं बन जाता मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना मैं 5 दूंगा, सालों 5 तोड़ो मैं 10 दूंगा। तो ये हिंदुस्तान में भाईचारा है, ये गंगा जमनी तहजीब है। अगर हिंदुओं को मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो मुसलमान सामने आता है, और अगर मुसलमानों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो हिंदू सामने आते हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई नफ़रत नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात नफ़रत फैलाते हैं, मुसलमानों को मज़हब के नाम पर टारगेट करते हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में भाईचारा है। और ये 3 वाक़यात पिछले 4-5 दिनों में सामने आए हैं जो बहुत अहम हैं, और इन वाक़यात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देने की ज़रूरत है। उन तमाम लोगों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जो नफ़रत फैलाते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से दूर करना चाहते हैं। उनको देख लेना चाहिए कि यहाँ सब एक है, मुत्तहिद हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। आसाम के करीमगंज में एक गाड़ी तालाब में गिर जाती है, 7 लोग डूबने वाले होते हैं, लेकिन मस्जिद का इमाम माइक से ऐलान करके उन 7 लोगों की ज़िंदगी बचाता है। आप लोगों को दादरी का 2015 का वाक़या भी याद होगा। वहाँ मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग की गई और एक धर्म स्थल के माइक से ऐलान किया गया कि उसके घर के फ्रिज में गाय का गोश्त रखा हुआ है, चलो उसको मारते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। हालांकि बाद में लैब में टेस्ट हुआ, पता चला वो गाय का गोश्त भी नहीं था। इस तरह के कई वाक़यात सामने आए। उसके बाद ये पीलीभीत का सामने आया, जहां फैसल सौरभ की जान बचाता है, या कुलदीप शर्मा अपनी ज़मीन अरफाज को गिफ्ट कर देता है। खास तौर पर आसाम की हुकूमत के लिए इसमें एक इबरत है, एक मैसेज है कि जिन मुसलमानों को वो दहशतगर्द बताते, जिन मुसलमानों को आसाम की हुकूमत बांग्लादेश भेजना चाहती है, जिन मुसलमानों को इल्लीगल शहरी बताया जाता है, जिन मुसलमानों के घरों को लगातार बुलडोज किया जा रहा है, वो मुसलमान सच्चे मुहिब्बे वतन हैं और मुसीबत पड़ने पर हिंदुओं की जान बचाने का काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिले टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिले टाइम्स के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि आप सबका इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा, आपका प्यार मिलता रहा, इसी तरह आपका ट्रस्ट और भरोसा मिले टाइम्स पर कायम रहा। तो इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही 10 मिलियन का संगे मील भी उबूर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी।